کہ ہم بات کر رہے ہیں پشاور شہر کی، جہاں کی نمک منڈی اور چپلی کباب کے کیا ہی کہنے ہیں، جہاں قصہ خانی بازار کی بھی ایک الگ ہی کہانی ہے۔ اس سرزمین پر بڑی بڑی ہستیوں نے آنکھ کھولی اور شہرت کی بلندیوں کو چھوا۔ 17ویں صدی میں تعمیر کی گئی محبت خان مسجد آج بھی پشاور کے سر کا تاج ہے اور تاریخی درہ خیبر کے قریب واقع پشاور نے صدیوں سے وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان گیٹ وے کے طور پر کام کیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ شاہراہ ریشم کے تاجروں سے لے کر جدید دور کے کاروباری مسافروں تک یہ شہر اسٹریٹجک، ثقافتی اور اقتصادی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن افسوس آج یہی تاریخی شہر اپنی جھولی میں کئی مسائل لیے بیٹھا ہے۔ امن و امان کا معاملہ ہو یا عوامی صحت کا، ایک دہائی پہلے نافذ کی گئی ایمرجنسی آج بھی برقرار ہے۔ تجاوزات کی بھرمار ہے۔ صنعتوں کی چمنی سے دھواں نکلنا اب بند ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ مشکل کہاں ہے؟ کیا مسائل ہے؟ کس کی نااہلی ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو پشاور کے باسیوں، آپ کا شہر، آپ کا سما میں ہم آج آپ کے ساتھ ہیں تاکہ آپ کی آواز اقتدار کے ایوانوں تک پہنچائی جا سکے۔ پشاور کو برصغیر کے قدیم ترین زندہ شہروں میں شمار کیا جاتا ہے، جس نے یونانی فاتح سکندر اعظم کے قدموں کی چاپ سنی، بدھ مت کے دور کی رونقیں دیکھیں، مغلوں کے قافلے دیکھے اور برطانوی دور کی سیاست بھی۔ وہ پشاور نہیں ہے جو آج سے 20-25 سال پہلے تھا، یا ہمارے بزرگ ہمیں قصے کہانیاں سناتے تھے کہ بیٹا پشاور جو ہے یہ پھولوں کا شہر تھا، باغوں کا شہر تھا، پیار کا شہر تھا، ثقافت کا شہر تھا، امن کا شہر تھا۔ مطلب جو الفاظ آپ استعمال کریں پشاور کے لیے بہت کم ہے۔ کیوں؟ پشاور ایک راہداری تھی، دنیا کی راہداری تھی، یہاں سے تجارت ہوتی ہے۔ یا انگریزوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، دنیا کی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن اب وہ پشاور نہیں ہے۔ اب پشاور گندگی کا ڈھیر بن چکا ہے۔ جہاں جائیں آپ کو تجاوزات ملے گی، جہاں جائیں آپ کو بلڈنگز ملے گی۔ قصہ خوانی بازار کی گلیاں آج بھی ان قصہ گوہوں کی یاد سنبھالے ہوئے ہیں جو دور دراز سے آنے والے مسافروں کو داستانیں سنایا کرتے تھے۔ جو قافلے آتے تھے افغانستان سے، یہ تقریباً افغانستان سے آ کر یہ قصہ خانی میں ان کا پڑا ہوا تھا۔ شام ہو جاتا تھا، شام کو دروازے بند ہو جاتے، سب صبح جب اذان ہوتا تھا تو یہ دروازے کھل جاتے تھے، قافلے روانہ ہوتے۔ ان درمیان میں جو قافلہ رکتا تھا تو یہ شام کو ہوتا تھا تو ایک کاوا چلتا تھا، کاوے کے ساتھ قصہ بھی چلتا تھا۔ یہ قصہ و کاوا یہ رات اسی طریقے سے گزر جاتی۔ بالا حصار قلعہ آج بھی شہر کے سینے پر تاریخ کی ایک زندہ مہر کی طرح ہے۔ قدیم فسیلے اور تاریخی دروازے آج بھی پشاور کے شاندار ماضی کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ خطہ صدیوں تک تجارت، ثقافت اور تہذیب کا مرکز بھی رہا ہے۔ صدیوں پرانا یہ شہر آج تجاوزات، ٹوٹی سڑکوں، آلودگی، ناقص صفائی اور بڑھتی آبادی جیسے مسائل سے نبرد آزما ہے۔ قصہ خوانی سے حیات آباد اور یونیورسٹی روڈ سے رنگ روڈ تک شہری ٹریفک جام سے پریشان ہیں۔ دوسرے سائڈ پیچھے سے پلازے بن رہے، بس اپنے پلازے بنا کے جو دیوار شہر ہے اس کو ختم کر دیا ہے۔ نہ حکومت اس پہ کوئی توجہ دیتی ہے، نہ عوام دیتی ہے۔ یہ تو پشاور کا ایک مشہور دیوار تھا شہر کا، دور دور سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں۔ کئی علاقوں میں بارش شہریوں کے لیے رحمت سے زیادہ زحمت بن جاتی ہے۔ تاریخی بازار جدید شہری دباؤ کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ یونیورسٹی روڈ ہے، اس میں بہت زیادہ پانی آتے ہیں، اوپر نالی کے نیچے نہیں جاتے، اوپر آتے ہیں، سارا راستہ بند ہوتے ہیں، لوگ بھی ادھر ادھر سے گزر جاتے ہیں۔ رشیں ہر جگہ بنی ہوتی ہیں، ٹریفک اہلکار جو ہے تو پرچے دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں، لیکن جب ٹریفک جیم ہو جاتا ہے تو اس ٹائم پہ جو ہے تو ٹریفک اہلکار نظر نہیں آتے ہیں اور لوگوں کو بلا وجہ تنگ کرتے ہیں۔ اور ایک پھولوں کا شہر کہلایا جاتا تھا، لوگ ادھر بڑے بہت زیادہ فارنر آتے تھے۔ ابھی جو اپنے پشاور کے شہری ہیں وہ بھی آزادانہ نہیں گھوم پھر سکتے۔ مسائل کی بات کی جائے تو یہاں گیس، بجلی اور اس کے علاوہ سڑکوں کا حال اسی طرح ہے، پرسان حال نہیں ہے۔ سسٹم دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہاں نہ صفائی صحیح ہے اور
ना सड़कें सही है, सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं और कोई नहीं है पूछने वाला। बढ़ती हुई आबादी और बगैर मनसूबा बंदी बनी तामीरात ने शहरों की जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी है। तारीख, सकाफत और मेहमान नवाजी के पहचान रखने वाला पेशावर आज मसाइल के गिर्द खड़ा है। क्या इस तारीखी शहर को इसकी अजमत के मुताबिक जदीद सहूलियात मिल सकेगी? क्या आवाम के मसाइल होंगे? समा आ रहा है पेशावर आवाम की आवाज़ बनने, उनके मसाइल हल करने। कैमरा टीम के साथ इरफान मुसाज़ई, समा, पेशावर। समा आ गया है पेशावर, तो ये रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको लिए चलते हैं पेशावर ही, जहां हमारी नुमाइंदा सुमेरा खान मौजूद हैं अपनी पूरी टीम के साथ। तो सुमेरा, फूलों के शहर में समा के नुमाइंदों का गुलदस्ता मौजूद है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, बेहतर से रूप दे सकती हैं। ओवर टू यू सुमेरा। थैंक यू वेरी मच। और जहाँ तारीख के हज़ारों अवराक हर गली में दास्तान सुनाते हैं, ये है पेशावर। पेशावर बड़े सग़ीर के कदीम तरीन शहरों में आबाद होने वाला एक वो शहर जो कि वस्ती एशिया और जनूबी एशिया का संगम रहा है, सकाफत, तिजारत और हर लिहाज से। सिक्योरिटी पैराडाइम अगर माजी में कभी शुरू हुआ तो वो यही आइटेनरी थी, जहाँ से ब्रिटिश एरा से लेकर उससे भी कई सौ साल पहले से सिक्योरिटी आइटेनरीज की बुनियाद रखी गई। इस वक्त मैं पेशावर में मौजूद हूँ, जहाँ किस्सा खानी बाज़ार में गूंजती हुई दास्तानें हो, कहवे की महक हो, या दुनिया में मशहूर तरीन चप्पल कबाब का जायका हो, पेशावर अपनी एक अलग मुनफरिद हैसियत रखता है। ये वो शहर है जिसने माजी में बहुत ज़ख्म खाए हैं, दहशत गर्दी के ज़ख्मों को सहने वाला खैबर पुख्तनख्वा का वो शहर जिसने इस ज़ख्म के अगली ही सुबह अपने आप को नए सिरे से ताज़ा दम किया और दहशत गर्दी की लहरों का डटकर मुकाबला किया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किस्सा खानी बाज़ार और नमक मंडी के मशहूर इलाके में। दुनिया भर में ये इलाका पाकिस्तान, खैबर पुख्तनख्वा और पेशावर की पहचान है। यहाँ से शहर शहर समा का आगाज़ करेंगे और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि पेशावर ब्यूरो समा की पूरी टीम इस वक्त मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त ब्यूरो चीफ पेशावर महमूद जान बाबर भी मौजूद हैं। महमूद भाई, और हमने यहाँ पर दहशत गर्दी की बहुत लहरें कवर की हैं एज अ जर्नलिस्ट भी, मगर आज जब हम लोगों को देखते हैं खुशहाल तो यकीन जाने कि दिल तो बाग बाग होता है। और यही एक कशिश हमें पेशावर खींच कर लाई है कि अब वो तो हमने निमट लिया एज अ पाकिस्तानी, एज अ खैबर पुख्तनख्वा के जरी पठान, क्योंकि दास्तानें बहादुरी की यहाँ से भी बहुत निकलती हैं हमेशा। तो आप मुझे ये बताएं कि अभी क्विकली एक रीकैप दीजिएगा कि पेशावर और खैबर पुख्तनख्वा ने कैसे ख़ुद को रिकवर किया और अब जो मसाइल हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो ये बताना ज़रूरी है कि जो असल पेशावर है, वर्ल्ड सिटी, जो कि 4000 साल पहले बना था, हम वहाँ खड़े हैं। इसके इर्द गिर्द और बहुत सारा पेशावर बस चुका है, लेकिन असल पेशावर ये नमक मंडी, साथ किस्सा खानी बाज़ार, खैबर बाज़ार, कुआटी चौक, ये वो सारे इलाके हैं कि जिसको हमेशा टारगेट किया दुश्मन ने। और दुश्मन ने इसको ना सिर्फ नॉर्मल दहशत गर्दी के लिए टारगेट किया, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे मसला बना वो था फिर कवारान दहशत गर्दी का। तो इसके लिए पेशावर सबसे ज़्यादा टारगेट हुआ। यहाँ पे टारगेट किलिंग ऐसे लोगों की हुई कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप याद करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों के जनरल रवैये में वो चीज़ कहीं भी नहीं है। वो जो आने वाले लड़ने वाले होते थे, आपस में लड़ जाते थे, लेकिन लोग उनसे मुतासिर नहीं हुए। लोग आज भी आपको देखें अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, खुश हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ मसाइल हैं, वो तो पूरे पाकिस्तान में हैं, वो यहाँ भी हैं, लेकिन बात यह है कि किसी बड़े वाक़ये ने लोगों के रवैये पे इतना बड़ा असर नहीं डाला जिसकी वजह से आप किसी के चेहरे को लटका हुआ देखें। नहीं, सब लोग खुशी खुशी एक दूसरे के साथ गपशप लगा रहे हैं। आप देखें आज छुट्टी का दिन है, लेकिन लोग एक दूसरे के साथ चिट चैट कर रहे हैं, आके नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते का मशहूर मरकज़ है ये, साथ में ये चप्पलों की दुकानें हैं और बाकी ज़िंदगी जो है वो चहल पहल है, वो जो चल रही है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर वापस अपने पेस पे आ चुका है। कुछ चीज़ों ने जिन्होंने इन्हें मुतासिर किया है वो बहुत माइन्यूट हैं, वो उस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी अब काफ़ी बेहतर है। बहुत शुक्रिया। और महमूद भाई की बात को आगे लेकर चलते हुए, इन्होंने मुझसे वादा किया था कि पेशावर पहुंचते ही तुमने नाश्ता यहाँ करना है, तो मैं और ये भी नाश्ता भी करेंगे, मगर साथ साथ आपकी बातचीत भी कराते हैं और आपको ये भी बताते चलें कि सुबह डेली की रूटीन है कि पेशावर में लोग आते हैं बाज़ार में नाश्ता करना, उनकी एक सबसे बड़ी हॉबी होती है। और जो भाई साथ साथ ताज़ा नाश्ता बना रहे होते हैं वो खुद भी साथ साथ नाश्ता कर रहे होते हैं चाय पीते हुए। तो यहाँ पर भी हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये, लोग माइक और कैमरा देख के लोग नाश्ता छोड़ के चले जाते हैं ना। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो कारीगर हजरात हैं यहाँ पर
ہمارے پٹھانوں میں بھی ان کو یا استاذ بولا جاتا ہے جو کسی کام کا ماہر ہو، اور یا کاریگر بولا جاتا ہے. تو میرے ساتھ اس وقت ایک بھائی موجود ہیں جو سب گرما گرم پوریاں تل رہے ہیں اور حیران بھی ہیں کہ آج یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں، روزانہ ویسے تو میں نے بچپن سے دیکھا ہے یہاں پر لوگ بہت شوق سے آتے ہیں ناشتہ باہر کرنے. ابھی یہاں پر اندازاً ایک وقت میں یا اس صبح میں اندازاً کتنے لوگ آ جاتے ہیں؟ تقریباً 100 150 200 آدمی آ جاتا ہے روزانہ. ہاں جی. اور حلوہ پوری ان کا پسندیدہ ناشتہ ہے کچھ اور بھی؟ جی پسندیدہ حلوہ پوری ہے. اور ہاں لے کے بھی جاتے ہیں، ویسے میں نے دیکھا کافی بڑے بڑے پارسل لے کے. ہاں جی پارسل بھی ہوتے ہیں، شادیوں پہ بیوہ پہ جاتا ہے آرڈر پہ. اچھا ہاں یہ ایک اور پیاری بات ہے کہ ہمارے ہاں شادیوں پہ ابھی بھی حلوہ پوری سرو کرنے کا رواج ہے. اچھا بھائی مجھے یہ بتائیں، ہمارا خیبر پختونخوا کا تو کلچر ایسا ہے خواتین زیادہ نہیں آتی یا فیملی ہالز میں ہوتی ہیں، تو یہاں پر جس بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں تو ناشتہ کرنے یا صرف گپ شپ ان کا مین مقصد؟ نہیں حلوہ پوری کھانے آتے ہیں ماشاءاللہ، خوشی سے اچھی لگتی ہے ان کو، وہ تعریف بھی کر کے جاتے ہیں. جی پشاور مشتاق ڈیری پہ ماشاءاللہ بہت اچھی پوری ہے. اور کتنے سال ہو گئے آپ کو یہاں؟ میرے کو 30 سال ہو گئے اس کا. 30 years. He spends 30 years of his life at this profession یا اس روزگار میں. اور ہماری جو دونوں کولیگز اس وقت اسٹوڈیوز میں بھی بیٹھی ہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ کوریج دیکھ کر یقیناً ان کا دل چاہ رہا ہوگا حلوہ پوری کا. مگر آپ کو کوئکلی لیے چلیں گے اپنے کولیگ سجاد کی جانب بھی. سجاد گلبہار میں موجود ہیں، اور کیونکہ ہم نے اپنا یہ ٹریول پشاور میں شروع کرنا ہے، آج پورا دن ہم پشاور میں ہیں، تو یقین جانے کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑیں گے جہاں مسئلہ ہو اور ہم نہ جائیں. مسئلے کو بڑھانے کے لیے نہیں، اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، تاکہ ایوان بالا تک، اقتدار کے ایوانوں تک وہ چیز جائے اور برِ صغیر کا یہ قدیم شہر اپنی ایک پرانی جس کو گلوری کہتے ہیں اس پہ لوٹ سکے. کوئکلی میں محمود بھائی سے مسائل کے شہر کے مسائل پر بات کروں گی اور اوور ٹو سجاد میں اس کے بعد کروں گی، پھر ہم اپنا ناشتہ کریں گے. اچھا محمود بھائی یہ بتائیں، پشاور شہر میں اگر آپ سے پوچھوں، بیکاز یو آر ڈیلنگ ود ایوری ڈے افیئرس، کمپلینٹس اینڈ ایوری تھنگ، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے شہر میں اس وقت؟ میرے خیال میں یہاں پہ ایک مسئلہ جو ہے وہ منشیات کا بنا ہوا ہے. گورنمنٹ اسے کسی طریقے سے ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کافی سارے لوگوں کو ٹریٹمنٹ بھی دی گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ چیز ہے. اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ عام لوگ بھی حکومت کا اس میں ساتھ دے رہے ہیں. یہاں پہ پانی کے مسائل تھے وہ تقریباً حل ہو چکے ہیں کسی نہ کسی حد تک. وہ جو بنیادی جو ہمارے گھروں کے مسائل ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک حل ہو چکے ہیں. یعنی تمام تو حل نہیں ہوئے. لوگ خوش نہیں ہیں کہ بس لوگوں کو پھر بھی شکوہ ہے کہ گیس آتی ہے اور جاتی کیوں ہے، تو پانی آتا ہے تو جاتا کیوں ہے. تو لوگ ابھی تک اس کے ساتھ اپنے آپ کو وہ نہیں، مسلسل فراہمی نہیں، مسلسل فراہمی یہ نہیں ہے کہ اس کی ٹائمنگ اب مقرر ہو گئی ہے. لوگ اس کے ساتھ ابھی آہستہ آہستہ عادی ہو رہے ہیں. جی تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل اب ہیں. باقی آپ کو معلوم ہے وہ جو جنرل جرائم ہیں وہ بھی ہیں اپنی جگہ پہ، وہ بھی لوگوں کا ایک مسئلہ ہے. یہاں پہ بجلی کی تاریں آپ کو دیکھیں وہ لٹکی ہوئی ساری تاریں جو نظر آ رہی ہیں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں رش اور تجاوزات کے مسائل ہیں. ابھی آپ پشاور دیکھیں گے تو باقی میں آپ کو بتاؤں گا، پھر رستے میں جب ہم چلیں گے میں آپ کو بتاؤں گا. راستے یہ بجلی کی تاریں ہمارا بڑا فیوریٹ سبجیکٹ ہے. یہ بہت زبردست، یہ ہر جگہ ہزاروں قسم کے جوائنٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ جب فالٹ آتا ہے تو کون سی تار میں ہے، کون سی تار کس میٹر کی ہے، یہ بھی نہیں پتہ چلتا. یہ ہمارا سب سے پسندیدہ سبجیکٹ ہے، کیونکہ ایک بار لاہور میں مجھے یاد ہے میں نے اس کے اوپر ایک بار رپورٹ کوریج کی تھی اور لوگوں کا ہنس کر حال برا تھا، کیونکہ وہ یہی چاہ رہے تھے. انہوں نے چیلنج کیا مجھے کہ پہلے یہ بتائیں کون سی تار کس میٹر کی ہے. ایز آف ناؤ سجاد کی طرف جاتے ہیں. گلبہار ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ایریاز آف پشاور، وہاں جاتے ہیں. سجاد ہمارے کولیگ نے بہت محنت سے یہ رپورٹ بھی بنائی ہے اس پشاور کے حوالے سے، وہ بھی آپ دیکھیں گے بعد میں. ابھی وہ ہمیں اس حوالے سے کیا بتا رہے ہیں؟ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، ٹوٹا پھوٹا انفراسٹرکچر ہے. پشاور یہ سب ڈیزرو نہیں کرتا. اوور ٹو سجاد. جی بالکل، ہم اس ٹائم یہاں پر گلبہار کے علاقے میں موجود ہے، اور گلبہار کا علاقہ جو ہے آپ پشاور انٹر ہوتے ہیں تو سٹارٹ میں جو ہے گلبہار کا علاقہ رہتا ہے، اس کے بعد جو ہے اندرون شہر شروع ہو جاتا ہے. پشاور کا گلبہار حلقہ خاصی سیاسی حیثیت کا بھی حامل ہے. یہاں پر بڑے بڑے لوگ جو ہے الیکشن لڑ چکے ہیں. یہاں پر جو ہم مسائل کی ہم بات کریں تو سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، مین ہول کے ڈھکن کبھی غائب ہو جاتے ہیں، کبھی لگا دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے حادثات رونما ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر ایک گلبہار کے رہائشی موجود ہے. کیا کہیں گے گلبہار کے مسائل کی سڑکوں کے حوالے سے؟ السلام علیکم. جی بس گلبہار کے مسائل یہ کہ جو بند آ جاتے وہ فنڈ لے جا کے اپنے مطلب اپنے گاؤں میں لگا دیتے. جیسے شوکت یوسف زئی ادھر سے جیتے تو یہ فنڈ لگا کے اس نے شانگلہ میں لگا دے،
और मतलब है इसके बाद तो कामर मंगश भाई कामर मंगश ने मतलब ऐसे भी उसने भी वो फंड लेके उधर से चले गए। जो बंद आके मतलब है इधर से जीत लेते। आप लेकिन कितने अरसे से गुलबहार में रह रहे हैं और कैसा देख रहे हैं, बेहतर हो रहा है कि नहीं? नहीं, ख़राब होते हैं। आज से 10 साल पहले का गुलबहार अभी के गुलबहार में बहुत फ़र्क है। तो हम मतलब है PTI के दौर में तो कुछ भी नहीं, अभी मलिक तारिक साहब आए तो उसने भी कुछ नहीं कहा। अब गुलबहार का मतलब है खुद देख ले, चेक कर ले, ना ढक्कन है ना मतलब गली भी रोड भी बहुत ख़राब है। तकरीबन 10 साल के पहले जो गुलबहार था अभी बहुत ख़राब है। उसके पानी के मसाइल, बिजली लोड शेडिंग कैसी है? सिला पानी के मसाइल भी बहुत है। जब बारिश हो जाते हैं तो मतलब रोड पे पानी खड़ा हो जाते हैं। और बिजली भी मतलब है कि 3-3 घंटे 3-4 घंटे बिजली भी गायब होते हैं। ये तो मतलब है पेशावर का जो है वो दिल है गुलबहार, महंगा तरीन जगह है लेकिन रोड और गली बहुत ख़राब है इसका। जी बिल्कुल, हमारे साथ गुलबहार के रिहायशी मौजूद थे और उनका कहना है कि महंगा तरीन शहर का इलाका है लेकिन यहाँ पर जो है वसाइल दस्तियाब नहीं है। रोड टूट फूट का शिकार है, मेन होल के ढक्कन लगाए जाते हैं लेकिन गायब होते हैं, जिसकी वजह से हादसा भी रुनुमा होते हैं। और इसके साथ लोड शेडिंग का एक सबसे बड़ा मसला गुलबहार का ये कि यहाँ पर लोड शेडिंग भी काफ़ी की जाती है। तो गुलबहार की हालत हमने गुलबहार के रिहायशी से ही जानी कि बेहतर होने के बजाय वो मज़ीद जो है इसके यहाँ पर हालात ख़राब हो रहे हैं और मुश्किलात का सामना शहरियों को करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया सजाद, साथ ही रहिएगा। आज पूरा दिन आपके साथ ही रहने वाले हैं हम पेशावर में। इस वक्त मेरे दूसरे कॉलीग इरफान मूसा ज़ई मौजूद हैं और बुढ़ने नाला इसको कहते हैं, पेशावर में 4 सदा रोड के दरमियान से गुजरता है और इसकी मुमासलत अगर हम रावलपिंडी के नाला लई के साथ करें तो ये बिल्कुल वैसा है। और सैलाब के दिनों में इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को, मकीनों को पेश आती हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो इस नाले के इर्द गिर्द बस चुके हैं या मज़ीद भी वहाँ पर सकूनत इख्तियार करने का इरादा रखते हैं। आपको इरफान मूसा ज़ई की जानिब लेके जाते हैं कि उनका इस हवाले से इस तफसीली रिपोर्ट में क्या बताना है। जी इरफान, ओवर टू यू। बुढ़नी नाला पेशावर के अहम बरसाती नालों में शुमार होता है, लेकिन गुज़िश्ता कई बरसों से मुनासिब सफाई न होने के बायस इसमें मलबा और कचरा जमा होता रहा है। बारिश के दौरान सरदार कॉलोनी, इबादुल्ला आबाद, ख्वाजा टाउन और दीगर नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो जाता है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी अफराद के मुताबिक बारिश के दौरान पानी की सतह तेजी से बुलंद होती है और सैलाबी रेला आबादियों का रुख कर लेता है, जिसके नतीजे में घरों, दुकानों और सड़कों को नुकसान पहुँचता है। कि जिस बारिश हो जाती है तो बुढ़नी नाले में सैलाब आता है और ये इलाका इंतहाई उसी वजह से इफ़ेक्टेड है, क्योंकि साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा ये सैलाब आते रहते हैं। हमने बहुत दफ़ा कोशिश की है, हुकूमत वक्त से गुजारिश भी की है, लेकिन अब हमें वो इसी बातों पर टरखाते हैं कि इसका टेंडर भी हुआ है, लेकिन आपको जैसे पता है कि मानसून की बारिशें शुरू होने वाली है और ये हम इसी मसले में बैठे हुए हैं कि खुदा न खास्ता अगर इस दफ़ा बारिश हो जाए तो ये जो हमारे घरों की हालत है वो इंतहाई कमज़ोर हो चुकी हैं। तकरीबन 3-4 दफ़ा साल में सैलाब आते हैं। गुज़िश्ता 20 साल से ये मसला आ रहा है। अभी जब थोड़ी सी बारिश भी हो जाए ना तो इलाका पानी से भर जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं। अब सोचे 20 साल से घर पानी में बार बार डूबते हैं, तो मतलब है कि उनका हाल भी खस्ता हाल हो चुका है और हुकूमत की वजह से कोई इकदाम नहीं हो रहे। चाहिए तो ये था कि अभी तक ये साइडवाल जो है ये हल हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक जो है वो अपनी जगह पर मतलब है। इसके साइड दीवारें लग जाए तो घरों में पानी नहीं आएगा। एक तो ये कि बारिश हो जाए तो बारिश की वजह से पानी आ जाता है और ये कट्टा जो है ना ये भी भर जाता है, तो ये सारे इलाके में जो है ना गंदगी बन जाता है और ये बच्चे भी गिर जाते हैं। महकमे आपाशी के मुताबिक बुढ़नी नाले की गुज़िश्ता 13 बरसों से सफाई नहीं की गई, जिसके बायस पानी गुजरने की गुंजाइश निसफ से भी कम रह गई है। हुकाम का कहना है कि नाले की सफाई और बहाली का काम शुरू कर दिया गया है ताकि आने वाले मानसून सीजन में मुमकिन नुकसान से बचा जा सके। हम इसकी जो वाटरवे है यानी जो उसकी विड्थ है वो रिस्टोर कर रहे हैं, क्योंकि इसकी सफाई आखिरी दफ़ा 2013 में की गई थी। उसके बाद फिर गवर्नमेंट में फ़ंड्स की शॉर्टेजेस की वजह से सफाई मुमकिन नहीं हो पाई। तो बुढ़नी नाला की डिस्चार्ज कैपेसिटी जिस पर यह डिज़ाइन हुआ था वो 25,000 से 35,000 क्यूसेक के दरमियान के डिज़ाइन डिस्चार्ज के लिए ये डिज़ाइन हुआ था। और जो हमने रिसेंट फ्लड्स में यानी जो पिछले साल मानसून में फ्लड्स आए थे उनमें हमने जो ऑब्ज़र्व किया तो बुढ़नी नाला पे जब 14,000 डिस्चार्ज क्रॉस होता था तो बुढ़नी नाला में इर्द गिर्द आबादियाँ फ्लडेड हो जाती थी।
तो हम वापस उसकी कैपेसिटी को वापस उसी डिस्चार्ज की जो डिज़ाइन डिस्चार्ज कैपेसिटी थी उस पर वापस रिस्टोर करने जा रहे हैं। मुतलका इदारों की जानिब से नाले की सफाई और हिफाजती इकदामात के दावे तो किए जा रहे हैं, ताहम मुतासरा इलाकों के मकीनों का मुतालबा है कि आर्जी इकदामात के बजाय बुढ़नी नाले के मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए ताकि हर बारिश के आने वाला खौफ हमेशा के लिए ख़त्म हो सके। कैमरामैन आबिद खान के साथ इरफान मूसा अज़ीज़, समा, पेशावर। बहुत शुक्रिया इरफान। और इरफान ने बहुत तफसील में हमें बताया बुढ़नी नाला, जिसको यहाँ हमारे मकामी जो पश्तून लोग हैं और रहने वाले यहाँ के लोग हैं वो बुढ़नाई भी कहते हैं। तो महमूद जान बाबर मेरे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा मैं इनको पश्तों में भी एक सलाम दुआ कर लूँ। दस की रवाना था पेखावर के एक जुमला जरूर पेखावर खो खार दे बस उसको हालत शुक्र दे डेर लगा दासी दी बस खल खुशहाल दी उगो रही आगा खफगानी शहर सहर भयो धमाका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हालात उस वक्त बदल ली। ढेर शुक्र दे दे अल्लाह। और इसी के साथ मैं सबसे पहले चाहूँगी, क्योंकि महमूद भाई यहीं पर होते हैं और इनकी टीम भी यहीं होती है, ये मसाइल जिसकी हम अभी निशानदही कर रहे हैं, हमने शुरू की है, अभी करना अभी तो पूरा दिन बाकी है, तो इसके लिए आप मुझे बताएं क्या इससे पहले आवाज़ को इस तरह से उठाई गई है, कोई डेडिकेटेड ट्रांसमिशन? नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि नेशनल मीडिया ने कभी इतना टाइम दिया हो पेशावर के लिए कि ये तमाम मसाइल एक ही दिन में पूरे के पूरे वो दिखाए जाएं। तो ये पहली कोशिश है और उम्मीद है कि इसके अच्छे नताइज निकलेंगे, क्योंकि ये बहुत दयानतदारी के साथ शहर के मसाइल उजागर किए जा रहे हैं। लोगों का हक है कि वो नेशनल मीडिया पे नज़र आएँ। यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा शिकवा ही यही होता है कि हमारी सियासत दिखाई जाती है, हमारी दहशतगर्दी दिखाई जाती है, हमारे मसाइल इतने बड़े बड़े करके दिखाए जाते हैं, हमारी आवाज़ नहीं होती। तो ये आज आवाज़ है, ये एक बहुत बेहतरीन बात है। और एक आपने क्विकली मुझे ये भी बताइएगा, मनशियात के हवाले से आपने बात की, उसके बाद पेशावर का इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ये बढ़ती हुई आबादी के मरहून मन्नत है कि इस वजह से मसाइल हैं? मसाइल तो ये भी हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि बाकी शहरों से भी लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ पे वहीं पुराना आपको मालूम है कि कबायली इलाका यहाँ पे करीब था। लेकिन एक बात मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो यहाँ की पुलिस इस मामले के साथ निमट रही है, मेरे ख्याल में इसका कोई आज तक सानी नहीं देखा। एक यहाँ के नौजवान CCPO हैं, लोग उसके लिए दिन रात दुआएं करते हैं। कब्ज़ा ग्रुप ख़त्म करने में उन्होंने काम किया है, मंशियात ख़त्म करने में उन्होंने काम किया है, मियाँ सईद उनका नाम है, और हर घर में उनके लिए दुआ होती। पहली बार पुलिस को लोगों ने इतना ओन किया है, मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की। तो मसले से एक जंग जारी है और इस जंग में इंशाअल्लाह जीत हमेशा लोगों की होगी, और ऐसा ही होगा जैसे दहशतगर्दी से हम जीत गए, इसी तरह ये मनशियात वाली जंग भी हम जीत ही जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा महमूद भाई, मनशियात का तो सबसे बड़ा एक रीज़न भी है हमारे पास कि ये सूबा इतना इफेक्टेड क्यों है ओवरऑल पेशावर के अलावा, कि हमारे साथ बिल्कुल करीब 7 दूसरे ममालिक की सरहदें लगती हैं, जो कि एक कॉन्डोवेट बना है हमेशा पास्ट में भी, और अभी भी इतलात काफ़ी वहाँ से ख़तरनाक आते हैं। ये इसके लिए कोई बहुत मास लेवल पे कोई कैंपेन नहीं करनी पड़ेगी, जितना बड़ा वॉल्यूम हमें सामना है उस मुल्क से दहशतगर्दी का भी और इस तरह की दहशतगर्दी का? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है इस इशू की बतौर रियासत, वो पहले से बहुत बेहतर है। एक तो ये हुआ है कि दहशतगर्दी इस इलाके में जिसमें आप खड़ी हैं, यहाँ पे किसी हद तक कंट्रोल है, तो वो जो इस वक्त वो वाली एनर्जी भी इसी पे फोकस हो रही है मंशियात पे, तो इसके असरात बेहतर होंगे। और इस वक्त जितनी भी स्टेट की एजेंसीज़ हैं या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो तमाम मिल के काम कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन भी तो मजबूत है, उसमें अरबों डॉलर की उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो जब वो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए कुछ तो करेगा ना। और इसमें कोई दो राय नहीं है अभी, क्योंकि हमने एक अगली जगह से भी आपके साथ बराह रास्त मुखातिब होना है। पेशावर, जैसे हमने शुरू में बताया था कि बहुत ज़ख्म खाकर बैठा है, पेशावर हमेशा से दुश्मन के नज़र में रहा है, रडार पे रहा है, क्योंकि उनको ये पता था कि यहाँ पर हमने जिस तरीके से एथनिसिटीज़ की बेस पर, फ़िरका वारियत की बेस पर या उसकी बुनियाद पर जिस तरीके से लोगों को आपस में लड़वाना है, वो साजिश कतन कामयाब नहीं हुई। मगर उसके बाद भी ये साजिशें जो हैं वो चलती रही हैं। महमूद जान बाबर ने शुरू में जिक्र भी किया, आप इन गलियों को देखें, इन लोगों की अज़मत को और हिम्मत को सलाम पेश करने को दिल करता है कि ये वही लोगों ने यहाँ से लाशें भी उठाई और अगले दिन अपनी ज़िंदगी को रवा दवा भी किया। इस वक्त एक ब्रेक की जानिब चलते हैं और पेशावर में हमारा सफ़र शुरू हुआ है हलवा पूरी के नाश्ते से। आपसे पेशावर में जगह जगह से मुखातिब होंगे बराह रास्त। समा के साथ रहिए, शहर शहर समा में।